کوئی ایک ان کے ساتھ اور رکشا والا بھی تھا جو کہ جس کا نام فرحان تھا، وہ اس کے ساتھ دو اور اس کے اکمپلس تھے، محمد شریف، وہ بھی ان کے فرحان اور محمد شریف اس کے ساتھ جو گاڑی کی خریدنے تھے وہ یہ لوگ شامل تھے۔ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کا عزم، سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی۔ کراچی ایئرپورٹ حملے میں ملوث خاتون سمیت 4 ملزمان گرفتار۔ وزیر داخلہ سندھ کا کہنا تھا کہ کالعدم تنظیم نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ ملزم جاوید عرف سمیع حملے کا ماسٹر مائنڈ ایک خاتون گلنساء کو اپنے ساتھ ملایا۔ حملے میں استعمال گاڑی کراچی میں شو روم سے لی گئی۔ بینک ملازم بلال اور ایک رکشہ ڈرائیور سہولت کار نکلے۔ مالی معاونت کرنے والوں کا پتہ بھی لگا لیا۔ پاکستان سے تعلقات سبوتاژ کرنے کی ہر کوشش ناکام بنا دیں گے۔ چینی دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ دہشت گردوں کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ چین پاکستان کے انسداد دہشت گردی کی کوششوں اور سماجی اور اقتصادی ترقی کی حمایت جاری رکھے گا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اسلام آباد پولیس سے کارکردگی کا ڈیٹا طلب۔ اراکین کے سخت سوالات پر آئی جی غصے میں آ گئے۔ الجھنے پر چیئرمین کمیٹی بولے اگر یونیفارم نہ پہنی ہوتی تو اجلاس سے اٹھا کر باہر بھیج دیتا، لیکن وردی پر لگے جھنڈے کی عزت کی پرواہ ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے آسٹریلوی فوج کے سربراہ کی ملاقات۔ جی ایچ کیو میں ہونے والی ملاقات میں دونوں اطراف نے علاقائی اور عالمی امن کے لیے جاری تعاون کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے دفاع اور سلامتی میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ آسٹریلوی آرمی چیف نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ریاض میں عرب لیگ سربراہی اجلاس جاری۔ وزیراعظم شہباز شریف بھی اجلاس میں شریک ہیں۔ اجلاس میں مشرق وسطی کی صورتحال پر غور، غزہ اور لبنان پر اسرائیلی جارحیت سے پیدا صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ شہباز شریف سے سعودی وزیر برائے سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالح اور ایڈوائزر رائل کورٹ محمد التجویری کی عرب اسلامک سمٹ کی سائیڈ لائنز پر ملاقات۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاک سعودی برادرانہ تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ ایرانی صدر کا سعودی ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کے اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کے غیر معمولی اجلاس کے حوالے سے گفتگو۔ مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ OIC اور عرب لیگ اجلاس میں اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ وہ ایرانی صدر کے دورہ سعودی عرب کے منتظر ہیں۔ IMF کی پاکستان میں موجود ٹیم سے وزارت توانائی وفد کی ملاقات۔ وزیر پاور ڈویژن اویس لغاری، وفاقی سیکرٹری اور دیگر حکام وفد میں شامل۔ IMF ٹیم کو پاور سیکٹر میں جاری اصلاحات پر بریفنگ، سرکلر ڈیٹ، بجلی چوری کی روک تھام اور ریکوریز کے امور پر غور۔ ملاقات دورہ پاکستان پر آنے والی IMF مشن کے تناظر میں ہوئی۔ معیشت میں بہتری کے لیے اقدامات اولین ترجیح، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں IT میں ہونے والی ترقی پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی۔ اداروں کے درمیان رابطے مضبوط ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اسٹارٹ اپ سسٹم کے تحت اداروں کو بہتر کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ کراچی میں ایک تقریب سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب۔ حکومت کی IMF سے رابطوں کے مثبت ثمرات۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کا رجحان۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز انڈیکس میں 600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ کاروبار کے دوران ایک موقع پر انڈیکس 94,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ سپریم کورٹ میں ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران آئینی بینچ کا تذکرہ۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ یہ کیس آئینی بینچ سنے گا، ہم ریگولر بینچ سن رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا کیا ہم غیر آئینی ہیں؟ مطلب ہے جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھتا آئینی مقدمات نہیں سنے جائیں گے۔ چلیں اگر ہم خود فیصلہ کر دیتے ہیں تو ہمیں کون روکنے والا ہے؟ تھوڑا وقت دیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ بننے کے بعد پہلا ملکی دورہ۔ جسٹس یحییٰ افریدی 16 نومبر کو کراچی آئیں گے۔ مزار قائد پر حاضری۔ کراچی رجسٹری میں جیل اصلاحات کمیٹی کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں متعلقہ حکام شریک ہوں گے۔
अडियाला जेल रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई एहतसाब अदालत में पेश। बुशरा बीबी भी समाअत के लिए पहुंची। वकील सफाई फैसल चौधरी ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है पहले बरियत की दरखास्तों पर फैसला किया जाए, जिस पर अदालत ने जवाब दिया कि अभी कोई हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। वकील सफाई ने 342 के बयान रिकॉर्ड के लिए अदालत से 14 दिन का वक्त मांग लिया। कराची की हाउसिंग सोसाइटियों में निजी अफराद को एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने का इंकशाफ। अदालत की किसी भी सोसाइटी में निजी फर्द को एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने पर पाबंदी। एडमिनिस्ट्रेटर तैनात होने वाले शाहनवाज लाशारी अदालत में पेश। आपकी क्या तालीम है? जस्टिस जफर राजपूत का शाहनवाज से इस्तफसार। इंटर साइंस शाहनवाज का जवाब। इंटर में कौन कौन से मज़ामीन पढ़े थे? जस्टिस जफर राजपूत का सवाल। मैं ये भूल चुका हूँ, मुझे याद नहीं रहे। एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल। भारत की खेल में फिर सियासत। एशिया यूथ स्क्रेबल चैंपियनशिप के लिए बेशतर पाकिस्तानी प्लेयर्स को वीजे देने से इनकार। कौमी टीम एशिया यूथ स्क्रेबल चैंपियनशिप में टाइटल के दिफा से महरूम। पाकिस्तानी प्लेयर्स ने इवेंट से 2 माह कबल वीज़ों के लिए दरखास्त दी थी। इंडियन हाई कमीशन ने जानबूझकर वीजे देने में ताखीर की। पाकिस्तान ने 2022 में भारत में एशियन टाइटल जीता था। मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार। भारतीय टीम के आने से इनकार पर पाकिस्तान का भी जवाबी वार। हुकूमत ने इंडिया के खिलाफ किसी भी इवेंट में कौमी टीम को खेलने से रोक दिया। जराये का कहना है कि कौमी टीम आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट भारत से नहीं खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और मुंतकिल की गई तो इस सूरत में भी हुकूमत की हिदायत पर अमल होगा। टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर गया तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीन शर्ट्स का वनडे सीरीज जीत कर अहम मुआरका सर। कौमी टी20 स्क्वाड कैंगरूज के खिलाफ पहले मैच के लिए ब्रिस्बेन पहुंच गया। 3 टी20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 14 नवंबर को खेला जाएगा। उस्मान खान, उमैर बिन यूसुफ, साहबजादा फरहाद, सुफियान मुकीम, अब्बास आफरीदी और जांदाद खान शामिल। अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, कामरान गुलाम, आमिर जमाल, फैसल अकरम और मोहम्मद हसनैन आज रात पर्थ से पाकिस्तान रवाना होंगे। बदतरीन स्मॉग ने पंजाब के शहरियों को परेशान कर दिया। धुंध के बाइस फजाई सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक करार। स्मॉग ने सूबे को चारों तरफ से घेर लिया। हद निगाह सिफर रह गई। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवे बंद। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर मौजूद। एयर इंडेक्स 500 से ज्यादा रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में भी स्मॉग के डेरे। ठल समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाके भी धुंध की लपेट में आ गए। इंडस हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बीमारियों ने भी सर उठा लिया। नाक और सांस के अमराज में इजाफा। 8 बजे मार्केट्स बंद करने का हुक्म नहीं दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग कंट्रोल करने में हुकूमती महकमों को नाकाम करार दे दिया। हुकूमत ने हिदायत के बावजूद तामीराती काम बंद नहीं किए। 2 रोज वर्क फ्रेम की होम की तजवीज़ पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया। फिटनेस न होने वाली गाड़ियों को 2000 नहीं 1 लाख रुपए जुर्माना किया जाए। शदीद धुंध से कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर। पंजाब हुकूमत के बचाव के लिए इकदाम जारी। लाहौर समेत सूबे के 4 डिवीजन फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान में आज से मार्केट, शॉपिंग मॉल, दुकानें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। रेस्टोरेंट की आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी आयद। स्मॉग तदारुक के लिए मसनूई बारिश नहीं इस्तेमाल करना होंगे। महकमे माहौलियात के मुताबिक मिस्ट कैनन से 40 से 50 फीट तक पानी का छिड़काव किया जाता है, जिससे कुछ न कुछ रिलीफ मिलेगा। ट्रैफिक पुलिस का माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। हज पॉलिसी 2025 का बाज़ाब्ता ऐलान। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर के मुताबिक सरकारी और निजी स्कीम के तहत हज कोटा 50-50% होगा। 12 साल से कम उम्र बच्चों को हज की इजाजत नहीं दी जा रही। हज 10,75,000 और 11,75,000 रुपए में होगा। दरखास्त गुजार दरखास्त के वक्त 2 लाख रुपए जमा करवाएगा। दौरान हज वफात पाने वाले हज्जाज को 20 और जख्मियों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। नून लीगी रहनुमा के पीटीआई पर फिर तंज के वार। अज़मा बुखारी कहती है अमेरिका से लड़ने का दावा करने वालों ने अमेरिकी झंडा उठा लिया। सवाबी जलसे में अमेरिकी आकाओं से वफादारी का अहद करना था। फितना और उसके चेले यूटर्न लेने को बहादुरी समझते हैं। गंडापुर को पार्टी का कोई शख्स वजीर आला मानने को तैयार नहीं। तहरीक इंसाफ अपने अंजाम की तरफ गामजन। ननंद भावज में अलग पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है।
सार्फिन की शिकायत पर पीटीए का इकदाम, गैर रजिस्टर्ड वीपीएन फायरवॉल के जरिए ब्लॉक। पीटीए के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी वीपीएन सिक्योरिटी रिस्क, हसास डेटा और गैर कानूनी मवाद तक रसाई हो सकती है। पीटीए वीपीएन की वाइट लिस्टिंग के अमल को तेज करना चाहता है। पाकिस्तान में बिजनेस इस्तेमाल के लिए वीपीएन पर कोई पाबंदी नहीं। इजराइल ने गजा, लबनान और शाम पर बम बरसा दिए, दर्जनों अफराद शहीद। इजरायली फौज की शमाली गजा में जबालिया कैंप पर बमबारी, 36 अफराद निशाना बने। बैरूत पर सिहोनी फौज के फजाई हमले, 23 अफराद जान से हाथ धो बैठे। दहशतगर्द फौज के शामी दारुल हुकूमत दमिश्क पर हमले, 11 अफराद शहीद। अनरवा ने शुमाली गजा में जल्द कहत का खदशा जाहिर कर दिया। हिजबुल्लाह का डर या मौत का खौफ, इजरायली वजीर आजम ने अपना दफ्तर बालाई मंजिल से तहखाने में मुंतकिल कर दिया। बेटे की शादी भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। नेतन्याहू की हुकूमत अपने ही मुल्क में बदनाम, इजरायली शहरियों के नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरे जारी। गजा में जंगबंदी और हमास से मुआहिदा करके कैदियों को रिहा करवाने का मुतालबा। नेदरलैंड के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में फलस्तीन के हामी सड़कों पर सैकड़ों अफराद डैम स्क्वायर पर जमा हुए और आज़ाद फलस्तीन के नारे लगाए। पुलिस ने झड़पों के दौरान 100 अफराद को गिरफ्तार किया। हुकूमत ने रवा हफ्ते फलस्तीन के हक में मुजाहिरों पर पाबंदी आयद की थी। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर सैकड़ों ड्रोन हमलों का दावा। रूसी वजारत दिफा ने कहा कि 6 इलाकों में 84 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। कुछ ड्रोन मॉस्को के करीब भी पहुंच गए थे। यूक्रेनी फजाइया का कहना था कि रूस ने 145 ड्रोन से हमले किए, बेशतर को मार गिराया। ओडेसा पर रूसी हमले में 1 शख्स हलाक और 13 जख्मी। वाशिंगटन पोस्ट का पुतिन और ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते का दावा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ट्रंप का यूक्रेन की सूरत हाल पर बातचीत जारी रखने में दिलचस्पी का इजहार। नौ मुंतखब अमरीकी सदर का कहना था कि रूस यूक्रेन मुआहिदे की हिमायत करेंगे। रूसी हुक्काम की पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते की तरदीद। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी, क्रिप्टो करेंसी के लिए नैक शगुन और बिटकॉइन तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। बिटकॉइन $80,000 की सतह भी उबूर कर गया। 5 नवंबर के सदारती इंतखाब में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद से बिटकॉइन को पड़ लग गए। ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो डिजिटल करेंसियों पर ज़वाबित को आसान कर देंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। लोअरदीर और मुल्क इलाकों में बारिश के साथ यालाबारी। मर्दान में भी मौसम सरमा की पहली बारिश से सर्दी महसूस की जाने लगी। कई इलाकों में ओले भी पड़े। आसमान पर अब भी गहरे बादलों का राज। मानसहरा की वादी कागान, नारान, बिट्टाकंडी और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। जिला इंतजामिया ने शाराय कागान और ए आगे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। पाकिस्तान बेसबॉल यूनाइटेड क्लासिक का चैंपियन बन गया। फाइनल में पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात को 12 के मुकाबले में 1 रन से शिकस्त दी। टूर्नामेंट में कौमी टीम नाकाबिले शिकस्त। फतह पर मैदान में शायकीन का जश्न। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मुत्तहदा अरब अमारात में होने वाले बेसबॉल यूनाइटेड क्लासिक टूर्नामेंट में 9 ममालिक ने शिरकत की। इस्लामाबाद में सालाना लोक मेला सज गया। मुल्क भर की सकाफतों और रिवायात के रंग पेश। शहरियों की बड़ी तादाद शिरकत के लिए पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा पवेलियन में बिखरते इलाकाई और सकाफती रंग सबसे जुदा। वाह कैंट में वुमेन एम्पावरमेंट काउंसिल के ज़ेर एहतमाम खवातीन गाला का एहतमाम। जरी वर्क, कशीदाकारी, सिलाई, कढ़ाई और वेस्ट रिसाइकलिंग से बनी एशिया पेश। दुबई के मसरूफ तरीन शेख ज़ैद रोड पर साइकिलों का सैलाब। हजारों अफराद ने दुबई फिटनेस चैलेंज में हिस्सा लिया।